class, I have discussed about the criteria by which you can make two triangle congruent. Okay? And in that series, I have told you the first congruency criteria, which was triple S, which was triple S, that is SSS, and I have explained it to you also that what is SSS and how to make two triangle congruent by using SSS. Okay, so this was a topic which we have done it in the previous class. Okay, now today we will discuss the next criteria, that is SAS. I try to cover up at least 2-3 criteria today, and maybe I think we will be covering it up all the criteria. Okay, so let us begin with SAS. Now, if you will be thinking that ma'am, why ma'am has written only SAS? Why ma'am has not written SSA? या मैम तो ASS भी लिख सकती थी, बट मैम ने SAS ही क्यों लिखा? किसी के मन में ये क्वेश्चन आया था? राइट इट डाउन, यस और नो. किसी के मन में ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? जस्ट थिंक ऑफ इट. Anyone has got this question? Why ma'am has written SAS, not written AAS? Sorry, ASS, or ma'am has not written SSA something? Yes, ma'am. अच्छा, आया था, अपेक्षा के मन में आया था. ठीक है, ओके, गुड. सो रिमेंबर, इफ यू हैव थॉट ऑफ कि मैम ने ऐसे क्यों लिखा, तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया, इट मीन्स यू आर अ वेरी थिंकर काइंड ऑफ स्टूडेंट. लाइक आपको जरूर सोचना चाहिए कि मैम ने ये क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा. ठीक है, सो रिमेंबर नाउ टुडे आई एम टीचिंग यू व्हाई वी हैव रिटन SAS एंड व्हाट इज SAS क्राइटेरिया. रिमेंबर, SAS का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड. याद रखिए, आप जितने भी क्राइटेरिया पढ़ते हो बेटा इन कॉन्ग्रुएंसी, हर एक नाम में ही सारा आंसर छिपा हुआ होता है. ठीक है, हर एक नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SAS, you are talking about side angle side, and when you are talking about side angle side, you can see that angle is in between. Okay, angle is in between and the side are always on the either side. Either side का मतलब होता है एक इधर पर है, एक उधर पर है, और बीच में एंगल है यहाँ पर. तो यहाँ पर इट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल दिस क्राइटेरिया, so इट मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूं और मुझे ऐसे समझाना है, मुझे ऐसे समझाना है, तो व्हाट आई विल डू, if I take this side and if I take this side, so I have to take only this angle. I cannot take this angle, I cannot take this angle, because this angle should be included. Included means in between. Included means in between. For example, this side and this side, and दोनों मिल करके बना रही है ये वाला एंगल. It means जब हम साइड एंगल साइड के बारे में बात करते हैं, so if you are taking the two sides that they are equal to another triangle, उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए. दैट इज व्हाई द नेम इज साइड एंगल साइड. इट मींस एंगल शुड बी इन बिटवीन दो साइड. ठीक है, तो अगर आपने ये वाली साइड ली तब तो ये हो गया बेटा, और अगर आप ये वाली एंगल या नहीं ले रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन में ये वाला साइड इक्वल दिया है, ये वाला साइड इक्वल दिया है, तो इट मींस एंगल ये वाला होना चाहिए, एंगल ये वाला होना चाहिए. ठीक है, और अगर हम इसके बारे में ना बात करें, ये नहीं दिया है सपोज, ठीक है, ये नहीं दिया. Now this is given, these two sides are given equal in the question. ठीक है, so it means angle should be this. Like always remember, the angle which you take, it should be included by both of the sides. Then only the criteria should be SAS, otherwise not. Okay, so remember, when you are talking about the criteria SAS, you are talking about two sides and included angle in between. Included angle in between, then only you are talking about SAS criteria. Now let us discuss here in the question. So it means I am just showing you an example. Suppose you have got two triangles. Just say you have two triangles and you can see ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल दिया है in the question. ठीक है, ये वाला इक्वल दिया है इस वाली के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और अगर ये वाला एंगल इक्वल दिया है इसके, तभी हम यहाँ पर SAS लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉट.
Okay, so remember when you are discussing about SAS criteria, you are discussing about two triangles on which the sides are equal. ठीक है, two sides are equal and their included angles are also equal, then only SAS side is criteria is applied. This is one condition. आई एम शोइंग यू अनदर कंडीशन ऑल्सो. ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला कंडीशन ही फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, ये इक्वल है, ये वाला इक्वल है एंड यहाँ पर ये वाला इक्वल है एंड ये वाला इक्वल है. ठीक है, ये वाली इसके इक्वल है बट ये वाली इसमें इसके इक्वल है. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए किसके, इस वाले के. लाइक दोनों साइड जो इक्वल दी हुई है उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी SAS अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, और सपोज अगर हम तीसरी कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस साइड एंड दिस साइड इज गिवन, सॉरी दिस साइड नहीं लेते हैं, दिस वन एंड इसको ले लेते हैं, दिस वन इज गिवन इक्वल एंड यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन गिवन इक्वल. तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर द मेजरमेंट विच यू आर टेकिंग, टू साइड शुड बी एक्सप्लेन, equal and the included angle should be in between. Okay, so remember when you are talking about SAS, you are talking about two sides and their included angle. Included angle का मतलब होता है वो दोनों ही साइड आपस में मिल करके उस एंगल को बना रही हो, उसको कहा जाता है included angle. ठीक है, अगर आप इसमें गौर से देखो तो ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है और ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों साइड को इंक्लूड कर रहा है. देखो इस वाले में अगर हम बात करें ये साइड, तो ये वाला एंगल जो है वो इन दोनों साइड को इंक्लूड कर रहा है. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये वाला एंगल दिया तो दिस एंड दिस मिला करके इंक्लूड कर रहा है. इस वाले में देखिए ये वाला और ये वाला मिल करके ये साइड को इंक्लूड कर रहा है. इस वाले क्वेश्चन में ये वाली साइड इक्वल दी है तो ये वाला और ये वाला मिलके इस साइड को इंक्लूड कर रहा है. सेम हियर ऑल्सो ये और ये मिलके इंक्लूड कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर SAS criteria is only applied when you are talking about two sides are given equal, or in another triangle also two sides are given equal of this particular triangle and their included angle should also be equal, then only this criteria can be applied. Okay, so now let us write. How to write it down? हम लिखेंगे कैसे, मैंने आपको पुरानी वाली क्लास में भी बताया था कि बेटा लिखने का, बेटा वंस मोर क्या, अभी वही तो समझाते जा रहे हैं. आई एम रिपीटिंग दैट ओनली, आई हैव नॉट मूव फॉरवर्ड, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ओनली. ऐसे ऐसे तो समझा रहे हैं, आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड नाउ. हु इज टेलिंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, प्लीज वंस मोर रिपीट. मैम अपेक्षा. अपेक्षा बेटा उसी को तो समझा रहे हैं, अभी तो हम आगे बढ़े ही नहीं है. ऐसे ऐसे तो बता रहे थे, ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे के ही थे. I have not moved forward. It's SAS only. SAS means side, angle, side. When you are talking about SAS, side, angle, side, it means you are talking about two sides and their included angle should be equal. For example, अगर आप गौर से देखोगे तो ये दो साइड इसमें इक्वल दी हुई है, इसमें भी ये दो साइड इसमें इक्वल दी, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोथ द ट्राइंगल्स. तो अगर दोनों साइड अगर किसी दो ट्राइंगल में आपस में इक्वल है, तो अगर उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तभी यहाँ पर SAS अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, सो रिमेंबर अगर ये वाला इक्वल है इसके, ये वाला इक्वल है इसके, देन ओनली दिस क्राइटेरिया शुड बी, दिस एंगल शुड बी इक्वल, एंड इफ दिस एंगल इज इक्वल देन ओनली SAS क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड. नाउ हाउ विल यू राइट इट डाउन? यू आर टॉकिंग अबाउट, हम मैंने आपको बताया सिंटेक्स हमेशा सेम रहेगा, ये तरीका हमेशा सेम रहेगा लिखने का. कैसे? सबसे पहले यू विल राइट इट डाउन इन ट्राइंगल ABC, दिस इज द नेम ABC एंड ट्राइंगल PQR. You have taken two triangles ABC and PQR. Now let us discuss
कि आपको क्या क्या इक्वल दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सबसे पहले AB is given equal to PQ, सबसे पहले, and it was already given in the question, so you will write it down the reason given, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है, given. Now the second thing is you can see that AC is equal to PR, ये भी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, so this is again given here. And last but not the least, that this angle, so angle A is equal to angle P. और अगर आप इसका दूसरा नाम लिखना चाहो तो इसका नाम बनेगा BAC is equal to QPR, ठीक है। या तो आप इसको लिखो या तो आप ये लिखो नाम, ठीक है, दोनों ही नाम सही हैं आपके। So if you have written this one, I am writing only A and P. So if I have written here A is equal to P, you know that this is also given in the question. Now you can see these are two sides and the angle which is given equal, वो आप क्वेश्चन में पहले देखोगे क्या ये इंक्लूडेड है, ये दोनों साइड से इंक्लूड किया हुआ है या नहीं किया है। अगर इंक्लूड किया हुआ है इट मीन्स इट इज SAS, so you will write it down by SAS triangle ABC is congruent to triangle PQR, and reason you have already written by SAS. This is the pattern of writing each and every question, remember, ठीक है। so क्वेश्चन में बेटा ये जो नीचे के 3 पार्ट है ना, ये जो दिख रहे हो आप, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि कौन से 3 पार्ट, because if you remember all the criterias, whether it is SSS, whether it is SAS और बाकी के भी जितने भी क्राइटेरिया जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सब में 3 पार्ट्स हैं, सब में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, सब में। तो आपको ये 3 पार्ट्स कौन से इक्वल है ये लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको लिखना ये जरूरी है कि आप कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद लास्ट में आपको ट्राइंगल का नाम लिखना है कि जो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट बना दिया, ठीक है। सो दिस इज द सिंटेक्स व्हिच इज नीडेड इन एवरी क्वेश्चन। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। so this was all about SAS. Aditya beta please pause recording for 1. Now if you follow the name again, you can see again the pattern is like the SAS, ठीक है, the pattern is like SAS. so remember the name is now angle side angle. Now what is the difference between side angle side and angle side angle? In that previous identity, previous criteria which we have discussed, in that angle was included, the angle was included by the sides, but in this criteria ASA, the side is included by the angle, okay. So the difference is only that, otherwise the full criteria is just like that previous one. Now look at here, I am explaining it to you. For example, if you are talking about there are two triangles, I am giving them name. One name is like RAT, another name I am taking as WON, okay. RAT and WON. If you see this one, it is telling here two angles should be equal, so I am taking that angle R of triangle RAT is equal to angle W in this question. It is given in the question, okay. Another thing, that this angle is also given equal to this angle in the question only. ये दोनों एंगल पहले से क्वेश्चन में इक्वल दिए हुए थे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया दो एंगल इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दैट इंक्लूडेड साइड शुड बी इक्वल। आप एक बार गौर से इस क्वेश्चन को देखो और आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों एंगल्स को अपने आप में इंक्लूड की हुई है। यूज चैट बॉक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट वन साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक कोई साइड है जिसमें ये दोनों के दोनों एंगल आ रहे हैं। गौर से देखिए,
एक साइड बेटा, एक साइड है, एक साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट टू साइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक ही साइड एक ऐसी है। हाँ बिल्कुल सही, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, बिल्कुल सही, एकदम सही लिख रहे हैं आप सभी लोग। अगर आप इसमें देखो तो ये वाला एंगल इस वाली साइड, ठीक है, ये वाला एंगल ये वाली और ये वाली साइड, तो एक साइड कॉमन आ रही है, कौन सी वाली, ये। इट हैज बोथ द एंगल्स कॉमन, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, और इस साइड पे देखेंगे अगर आप गौर से, तो ये वाला जो साइड है वो आपके दोनों एंगल्स को इंक्लूड किया हुआ है उसने, ठीक है। इट मीन्स दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड, देन ओनली द क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल विल बी अप्लाइड, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल लिखने का वही तरीका है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। सो वील राइट इट डाउन, सबसे पहले इन दोनों का नाम, बिकॉज बिना नाम के सब कुछ अधूरा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल RAT एंड ट्रायंगल WON, ठीक है। सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक एक चीज शुरू करते हैं। एंगल ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में इक्वल एंगल ओ के, ठीक है। सबसे पहला चीज मेंशन किया हमने, इट इज गिवन, सो आई विल राइट इट डाउन, गिवन। सेकंड थिंग, angle R is given equal to angle W. This is also given in the question. And the third part, that is last but not the least, that is AR is given equal to WO. क्या आप लिख सकते हो RA, बेटर होगा RA लिखना, बिकॉज नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो वुड बी RA will be equal to WO. So this is also given. So if you see in this equal parts, two angles are given equal, and the side which is given equal, that is the included side by both the angles. So that is why if you see this question, it is having the congruency by A criteria triangle RAT is congruent to triangle WON. Finish. Okay, so this was all about angle side angle. Okay, this was angle side angle. Okay, now let us discuss more about it. Just a minute, let me take a screenshot of this one. Okay, fine. Aditi, you may stop recording for 1 minute. Now look at here. I have just explained it to you, beta, that ASA के थ्रू हमको दो एंगल्स आपस में इक्वल दिए थे पहले से क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो एंगल आपस में इक्वल दिए हो और आप तीसरे को जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते हो, तो ये वाला जो 30 है ये भी 30 आ गया, मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए आपस में, ठीक है। अब नाउ अगर आप गौर से देखो तो ये ASA जिस भी ट्राइंगल में अप्लाई होती है, ये ASA क्राइटेरिया जिस भी ट्राइंगल में अप्लाई होती है, उसी ट्राइंगल में हम AAS भी लगा सकते हैं। ओके, AAS भी लगा सकते हैं। नाउ हाउ AAS लगा सकते हैं, नाउ रिमेंबर AAS होता क्या है। AAS का मतलब होता है एंगल साइड, मतलब दो एंगल विच आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, लगातार, ठीक है, विच यू टॉक अबाउट, एंड द लास्ट वन इज साइड। तो अगर आप गौर से इसमें देखो, एंगल साइड लग गया। अगर हम इसको दूसरे वे में देखना चाहें, हमको वैसे नहीं देखना, हम ऐसे देखते हैं, एंगल साइड, दो एंगल आपस में लगातार इक्वल, उसके बाद तीसरे नंबर की साइड, यहां से देखोगे तब भी इक्वल, यहां से देखोगे तब भी इक्वल। इट मींस एंगल साइड क्राइटेरिया सेज दैट यू शुड हैव टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इक्वल एंड द थर्ड साइड जो उसके तुरंत बाद आने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
एंगल आया, पहला नंबर का एंगल, दूसरा एंगल जो कि उसके तुरंत बाद का था, दैट वाज कंसेक्यूटिव, और ये देखो साइड उसके तुरंत बाद आने वाली। तो नाम से ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देखो एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल एंड ये तुरंत साइड। ठीक है, हम इसको इस वे में ना देखें, अगर हम दूसरे पैटर्न में देखें तो देखो ऊपर साइड से देखो एंगल एंगल और ये तुरंत साइड, एंगल एंगल और ये तुरंत साइड। मतलब द क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड इज जस्ट जनरेटेड बाय ASA ओनली। मैंने अभी तुरंत आपको ASA का यूज करके ही AAS निकाला है, मैंने कहीं पर भी दूसरा डायग्राम यूज नहीं किया। ठीक है, आई हैव नॉट यूज्ड एनी सेकेंड डायग्राम फॉर इट, आई हैव जस्ट टेकन अप द एग्जाम्पल ऑफ ASA ओनली, जो कि मैं पहले से कर रही थी, और उसी के साथ मैं आपको AAS में लेकर चली गई। एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग आल्सो दैट ASA इज जस्ट सिमिलर लाइक AAS। अगर आप चाहो तो ASA को AAS बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो AAS को आप तुरंत ASA बना सकते हो। ठीक है, बिकॉज दोनों के दोनों एक दूसरे से ही आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। Okay, I am talking to everyone. Is it understood what is ASA and what is AAS? What is the difference between these two criteria? मैम हाउ विल वी राइट AAS? हाँ, कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ, एकदम 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ चल, नाउ लुक एट हियर, हाउ विल वी राइट इट डाउन। फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अपेक्षा। बस सेम थिंग, विल राइट इट डाउन इन ट्रायंगल RAT and triangle WON। अब क्या क्या इक्वल दिया पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। बेटा ये हमेशा तभी मिलेगा जब आप इसका तीसरा एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीसरा एंगल निकालना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो हमने तीसरा एंगल निकाला जिसके थ्रू हमको एंगल T इज इक्वल टू एंगल N मिल गया, फर्स्ट थिंग। देन एंगल A और एंगल O क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। ठीक है, इसको हमने निकाला है बाय एंगल सम। तो मैं यहाँ पर रीजन वही लिखूंगी जो मैंने जिसके थ्रू निकाला था। मैंने निकाला था बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने निकाला था, तो मुझे दोनों इक्वल मिल गए थे एंड इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ये पहले से क्वेश्चन में दिया था, तो दैट वाज बाय एंगल सम, दिस इज बाय गिवन। एंड द लास्ट थिंग दैट AR इज अ साइड which is given equal to OW. So this is also given in the question. Now look at here, two angles which were consecutive and the side which is given this side is just after those two angles. Those two consecutive angles which we have taken it, these two are consecutive angle. A के बाद तुरंत T आता है, T के बाद तुरंत A आता है। ठीक है, and the side which is given equal, that is just after two consecutive angles, then that is why by AAS criteria triangle RAT will be congruent to triangle WON. Finish. बेटा आप याद रखिएगा, इसको लिखना बहुत इजी होता है बिकॉज सब में वही पैटर्न है, ऑल द पैटर्न्स आर सेम। पहले आप ट्राइंगल का नाम लिखो, उसके बाद कौन से 3 पार्ट्स जो हैं आप ले रहे हो इक्वल वो लिखो, और उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया उन जो आपने पार्ट्स इक्वल लिखे हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट कैन बी एनी क्राइटेरिया, इट कैन बी SSS, इट कैन बी ASA, इट कैन बी AAS, it can be RHS or whatsoever the criteria which you will apply, आप उसको वहां पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप लिखोगे ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। फाइन, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट क्राइटेरिया बचा है जो हम मंडे को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। यस मैम, कैन यू टेल व्हाट इज रिटन बिसाइड एंगल T इज इक्वल टू एंगल N? इट इज एंगल सम, बाय एंगल सम बेटा, इट्स रिटन बाय एंगल सम। ओके मैम। Okay, so Aditya, stop, मतलब like save the recording now.